सर विजिबल है? हाँ विजुअल है। This is the case of rheumatoid arthritis seropositive. A 7-year-old girl, 7-year-old girl named Biana Gada was suffering with left knee joint pain. There was swelling in the left knee joint with thumb. With morning stiffness. Sometimes the pain got much severe that she had to miss her school and was not able to walk normally. On 27 June 2023, she was suffering with UTI infection. Her parents took her to the homeopathy treatment for a month, but there was no improvement in her health. In August, there has been swelling in the calf muscle of left leg. After 15 days, swelling has been observed in the left knee joint and with severe pain. Due to this, she was finding difficulty while walking, so she started leaping. On 15th August, they visited the doctor while they were told to do sonography and the blood test. And after 15 days, the doctor suggested MRI report of knee joint. उनका रिपोर्ट है 29 अगस्त ब्लड टेस्ट ESR 81 CRP 6.3 HLA B27 पॉजिटिव RA फैक्टर 15.1 vitamin D 27.2 PTS 13.1. After MRI, she was taking allopathy medicine, but the pain was not subsided. Her mother had contacted me on 21st October 2023 regarding her disease, and I guided her first the diet for her disease as she is from Bombay. So I instructed her to avoid dairy products, wheat products, and processed food. Then I suggested her to take Sujok therapy whenever possible, came to Hyderabad. With the help of these diets, she got some pain relief. मतलब मैंने जो सप्लीमेंट दिए हैं वो लिपोसी ट्वाइस अ डे, डिकासन मेड ऑफ जिंजर, टर्मरिक, तुलसी लीव्स, मेथी, cinnamon, gloves, green leafy vegetable juice, and vitamin D3 given 4 days regularly, and then after 15 days then weekly once. कॉन्स्टिट्यूशन था उसका ह्यूमिडिटी एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्विंग कॉन्स्टिट्यूशन एज ए इंडिविजुअल. On 18th November, she came to Hyderabad for the Sujok treatment. I made her constitution, humidity excessive constitution, and Arvin constitution. Day 1, I have done sedate dryness, 25 heat, sedate hotness. First 3 days, I have done the constitution only. She got relief in her morning stiffness. With the constitution, I have added in the 4th sitting anti-inflammatory tone hetero, sedate homo, and regulatory cells tone hetero, sedate homo. Day 5, I have added spleen lymphatic system operation order and by reaching left knee, presenting pain as a homo, sedate hetero, tone homo. Her leg movement for walking and climbing stage has improved. Day 6, I added T regulatory cells, tone hetero, sedate homo, tone neutral. Then I made the constitution of knee joint where redness, swelling, and pain was there. So I examined her knee joint. I felt some sort of hotness. So I made the constitution of left knee joint, humidity, excessive constitution. Now I did external wind and humidity chakra in left hand, middle finger, middle joint. That is the correspondent of left knee joint. Then I done external wind chakra mein sedate dryness, 25 heat, sedate hotness, and external humidity chakra mein tone heat, sedate hotness, tone wind. Day 10, day 11, same as she got good relief and the swelling was also been reduced. And day 12, I have added diaphragm border meridian of the in the left knee joint, means left hand, middle finger, and middle joint. In that joint, I have done diaphragm border meridian treatment, sedate dryness, 25 heat, and the anti-inflammatory cells and tone T regulatory cells were treated every alternate day during the treatment. Before the treatment, this blood report है, उसका MRI report है.
आफ्टर द ट्रीटमेंट उसके 1 मंथ और 2 मंथ के बाद उन्होंने सारे रिपोर्ट कराए। उसमें ESR 10 आया, PTH 8.43, CRP 0.4 एंड RA फैक्टर 10.8। बिफोर द ट्रीटमेंट ये लेफ्ट नी जॉइंट को देखिए आप, स्वेलिंग काफी है। नमस्ते, मेरा नाम बंसरी है। मेरी बेटी वियाना ये 7 साल की है और हम मुंबई से है। सर जुलाई वीडियो की महीने में आवाज आ उसे रही? यूरिन ठीक है। इन्फेक्शन हुआ था। फिर अगस्त में उसके नी काफ में स्वेलिंग आई। फिर धीरे धीरे वही स्वेलिंग उसके नी में आई। फिर हम लोग ने सोनोग्राफी करवाई, MRI करवाया, तो उसमें RA फैक्टर डायग्नोज हुआ। और हम डॉक्टर्स के पास गए, 2 महीने हमने दवाई ली। उसके बाद डॉक्टर ने फाइनली बोला कि स्टेरॉइड का एक इंजेक्शन ले लो। लेकिन हमने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए सोचा कि क्या करना है। तो हमें हमारी फैमिली फ्रेंड है मनीषा गांधी जी, जो हैदराबाद से है, उन्होंने हमें गाइड किया। इसका HLA भी 27 भी पॉजिटिव था। तो फिर उन्होंने हमें डाइट भी दिया। हमने इमीडिएट स्टार्ट किया डाइट। उसके बाद हम हैदराबाद गए और वहाँ पर 15 डेज़ का थेरेपी लिया। उससे काफ़ी डिफरेंस हुआ उसके चलने में, उसके लिम्पनेस में। जो स्टिफनेस थी मॉर्निंग में वो कम हो गई और काफ़ी एक्टिव हो गई, स्कूल रेगुलर जाने लगी। स्टेप्स क्लाइंबिंग में भी काफ़ी डिफरेंस था और शी इज़ मच बेटर नाउ। एंड डाइट अभी हम फॉलो करते हैं और सिर्फ रेगुलर कंसल्टेशन जो बोलते हैं रेगुलर, जो उनसे हम फॉलोअप लेते हैं। और मनीषा जी ने काफ़ी उसको इम्प्रूवमेंट लाके दिया। और we are very happy with this Sujok therapy, and thank you to Sujok and thank you to Manisha गांधी जी को कि हमें सही गाइडलाइन दे दी सही समय पर, और हम ये मेडिसिन से काफी खुश हैं। धन्यवाद। वंडरफुल। नमस्ते, मेरा नाम बंसरी है। मेरी बेटी वियाना। सर कुछ बोल सकती हूँ? हाँ। इनको आफ्टर द ट्रीटमेंट इन द हैदराबाद, मैं वापस जनवरी महीने में मैं 4-5 डेज के लिए बॉम्बे गई थी। तभी भी उन्होंने मुझे कांटेक्ट करके मेरे से 2-4 सिटिंग ली। और उसके बाद फिर ये जो मैंने रिपोर्ट बताए, फरवरी महीने में सारे रिपोर्ट्स कराए एंड सारे रिपोर्ट्स ठीक थे, एकदम ठीक थे। और वो अभी 5 महीने हो गए, शी इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जॉइंट्स पेन कुछ नहीं है और वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपने डाइट। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए मनीषा। क्या सर? स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए आप। बहुत अच्छा। सिंस इनको HLB 27 भी पॉजिटिव है, सो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इनको डाइट पे रहना होगा। वो आप गाइड करते रहिएगा। अभी तक वो डाइट फॉलो कर रहे, दिस इज गुड। मतलब अभी रूटीन में है, स्कूल जा रही है, सब कुछ कर रही है, इवन बैडमिंटन भी खेल रही है। बहुत अच्छा। सर RA फैक्टर नेगेटिव और RA फैक्टर पॉजिटिव, सर जब रिपोर्ट्स में आते हैं तो क्या मतलब होता है इसका? रिमेटॉइड पॉजिटिव तो आर्थराइटिस समझ का है। कुछ सिम्टम्स होता है, कुछ सिम्टम्स होते हैं कार्डिनल सिम्टम्स। ये पैथोफिजियो के क्लास में भी मैं बताऊंगा, अभी आप लोगों को नहीं बताया मैंने। तो अगर मान लीजिए आपको सिम्टम्स हैं, ठीक है, सो अगर आपको सिम्टम्स हैं और आपका RA फैक्टर नेगेटिव आ रहा है, सो उसे हम लोग सेरो नेगेटिव रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। कुछ सिम्टम्स है 10 सिम्टम्स, उसमें मेजर 5 या 6, मेजर और माइनर मिला के 4-5 सिम्टम्स अगर आपको मैच करते हैं तो उसे RA फैक्टर रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन अगर RA फैक्टर नेगेटिव आ रहा है तो उसे हम सेरो नेगेटिव बोलते हैं, और अगर हमें पॉजिटिव आ रहा है तो उसे हम सेरो पॉजिटिव रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है। RA फैक्टर बहुत पहले का टेस्ट है। अभी HSCRP भी चेक करके देखना होता है कि अगर आपका HSCRP पॉजिटिव आ रहा है
दैट मीन्स कि अर्ली स्टेज में पता चल जाता है। आरए बाद में भी हो सकता है पॉजिटिव आए आपको, लेकिन उनका HSCRP पॉजिटिव पहले आएगा। तो ये बहुत रिसेंट टेस्ट है, तो आजकल हम लोग HSCRP भी चेक करके देखते हैं। बट ठीक है, अगेन वो कॉस्टिंग आती है, बट कि खर्चा है ब्लड में का एंड ऑल। लेकिन सिम्टम वाइज अगर हमें पता चल रहा है और ट्रीटमेंट से सिम्टम्स में आराम मिल रहा है तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। सर ये HSCRP तो नहीं, मतलब CRP तो सबका ऐसे वाले जो मैंने सेरोनेगेटिव केसेस हाँ, ना, CRP भी चार अगेन अगेन केसेस CRP पुराना है, HSCRP अगेन न्यू रिफाइंड टेस्ट है और अच्छा रहता है HSCRP। तो ऐसे केसेस मैंने 3 केसेस किए थे सर HSCRP जिनका भी नेगेटिव था, बट दे गॉट वायरल फीवर एंड आफ्टर दैट दे गॉट सीवियर joints pain, every joint pain was paining and they Right. can't move also, Right. और मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत सारी थी। तो Right. ओनली कॉन्स्टिट्यूशन और विटामिन डी Yes. और Yes. B12 के देने से विद इन 4 और 5 सिटिंग्स में दे गॉट मॉर्निंग स्टिफनेस रिमूव एंड उनके हैंड्स जो वो फोल्ड नहीं कर पा रहे थे वो सारे में इम्प्रूवमेंट आया। Yes. क्योंकि अगर आपने CBC का कोर्स में मैंने जो बताया था एंड आयरन एंड ऑल, उसमें काफी रिसर्च पेपर हमने डिस्कस किया था कि बहुत बार रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इवन क्रॉनिक डिजीजेज, कुछ ना कुछ इन्फेक्शंस के कारण होते हैं। सो कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद तो कोई जरूरी नहीं आपको आरए पॉजिटिव आए एंड ऑल। तो अगर आप उनके बॉडी से इन्फेक्शन को क्योर करते हैं तो उनके सारे सिम्टम्स चले जाते हैं। और ये शायद मैंने अभी बोला नहीं कि इसमें मैंने आरए फैक्टर को भी वाला ट्रीटमेंट भी दिया इनको। और वो लड़की को क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत सारे नीडल्स नहीं ले पा रही थी, मतलब इतनी स्मॉल लड़की ने भी ट्रीटमेंट लिया, मतलब बिग डील, बहुत अच्छे से उसने आराम से लिया। तो जितने कम नीडल में काम करना था मुझे, उससे उसको काम करना। यस यस यस, ये भी ध्यान में रखना होता है। राइट, बहुत सही। और बहुत अच्छे से उसने सपोर्टिव वे से पूरा ट्रीटमेंट लिया। और वापस बॉम्बे भी जाके उन लोग ने थोड़ा फॉलोअप मेरे को ले लिया, और उसके बाद फिर आज तक नहीं है। ठीक है सर, बिल्कुल उनको करना होगा, क्योंकि दो दो ऑटोइम्यून उनको आ रहा है, तो लॉन्ग टर्म तक विटामिन डी एंड डाइट पे रहना होगा बच्ची को। आप गाइड कर सर वो हम पूरा गाइड करें उनको। अभी 5000 यूनिट ले रही है वो, बहुत उसके अच्छा। वेट के हिसाब से, और राइट, एमसी मैग्नीशियम ऐड किया है। बहुत अच्छा, तो गुड, बहुत अच्छा, वंडरफुल। still she is taking all जवारी रोटी and all this now, still she is not taking any बाहर का कोई भी फूड नहीं खाती है। कभी बहुत, एक दो दिन खा भी लेती है तो उसको कुछ कुछ तो सिम्टम्स दिखता है, तो दे आल्सो डोंट डू। यस यस। किसी को कोई क्वेश्चंस? सर इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का विटामिन डी और पीटीएच के वैल्यूज कोरिलेट हो रहे हैं? 13 है पीटीएच ना बच्ची का, और विटामिन डी 27 है। इसमें कोरिलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि पीटीएस ठीक है, कभी कभी पीटीएस बहुत एक्सेसिव रहता है तो विटामिन डी का बहुत बहुत ज्यादा डोज देना पड़ता है। बट स्टिल हमको विटामिन डी बहुत बढ़ाना था, तो मैंने वो हिसाब से दिया। कभी कभी क्या जो होता है, रेगुलर डोज था, पीटीएच क्या होता है, कभी कभी किस लैब से हुआ वो मैटर कर जाता है। और कभी कभी पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन इटसेल्फ डैमेज रहता है ऑटोइम्यून के केस में, तो वो भी रहता है। बट अगर आप ऑटोइम्यून है तो डेफिनेटली विटामिन डी रेसिस्टेंस है, ये इस्टेब्लिश्ड हो चुका है विथ रिसर्च। Sir, what is the role of gluten free in this? Gluten is some nowadays causing some allergy, or and it aggravates the immune system, so it creates more problem for autoimmune disorder. That's why we are stopping the gluten. But again, if you are taking high dose of vitamin D, then after 3 months your this gluten allergy will also will be treated with the vitamin D and all. So we can take gluten also after vitamin D therapy course also. But now again, the gluten is again, the problem with the gluten is the making of the wheat and the GMO seed of the wheat and a lot of things. So that's why we are trying to avoid it. So if we are taking a non-genetically modified wheat, then it is okay. Then it is okay. सर प्रेजेंटेशन कैसा था? Wonderful, बहुत अच्छा।
बस आप Sir, सेम पैटर्न फॉलो करिए, सेम पीपीटी जो हमने शेयर किया था, सो अच्छा रहेगा। पहले सारे रिपोर्ट से हाँ कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस किसी को केस से? सर ये अभी सेकंड केस में इन्होंने ट्रायोजिन नहीं यूज किया था, ओनली कॉन्स्टिट्यूशन एंड 8 की। नहीं नहीं किया है ना, आपको एंटी ओके इन्फ्लेमेटरी एंड ऑल वो सब यूज नहीं किए? yeah, sir. ओके सर। Anti-inflammatory T-regulatory cell T and regulatory left knee joint में homovrent करके heterosedate किया क्योंकि she have pain only in the left knee joint. So we are combining 6-key triargine, now we are combining 8-key also. spleen lymphatic system operation order इसमें Yes. भी दी और external chakras ऐड किए Yes. और external chakra ऐड करने से उसका swelling काफी ठीक हो गया। Yes, external chakra is giving wonderful अभी results. तो बिल्कुल भी और कोई क्वेश्चंस? सर मनीषा जी ने बोला बाय रेंटिंग आर ए फैक्टर इन ह्यूमिडिटी और फिर उनने टोन हॉटनेस वगैरह के ये रेंट आर ए फैक्टर कैसे रेंट किया आपने? वो जो हमको सर ने 62 में सिखाया है, ओम हीट में इम्यून सिस्टम यानी ड्राइनेस में जॉइंट्स कार्टिलेजिनस 62 में हर एक कनेक्टिव टिश्यू जो है उसका 6 की डिवीजन है। एंड उसके बाद उसमें आरए फैक्टर इवेंट को रेंट करके उसमें टोन हॉटनेस सेडेट कोलनेस वो आपकी 60 वाली इसमें फॉर्मूला यही हुआ ना, जैसे ओम हीट में ड्राइनेस यानी इम्यून सिस्टम में कोलाजेनस टिश्यू इज ड्राइनेस, फिर ड्राइनेस में आरए फैक्टर इज अ विंड को रेंट करके उसमें टोन हॉटनेस सेडेट कोलनेस, टोन हीट सेडेट ड्राइनेस। आपने आर ए फैक्टर को टोन किया? हाँ, एज अ डिजीज आरए फैक्टर लिया, लेकिन Dim- कोलाजेनस RA टिश्यू factor है means- वहां तो डिजीज को रेंट किया। सर आर ए फैक्टर की डिजीज को रेंट करके हॉटनेस टोन करना मींस आर ए फैक्टर को ही टोन किया ना? नहीं कोलाजेनस टिश्यू कोलाजन टिश्यूज। ओके ट्रीटमेंट कोलाजेनस टिश्यू में किया, लेकिन देयर आर 6 टाइप ऑफ डिजीज ना, सर ने बताया आरए एसएलई, तो सबके अलग अलग। ठीक ओके थैंक यू। और कोई क्वेश्चन या फिर हम लोग आगे बढ़े प्रेजेंटेशन के लिए? चलिए कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट प्रेजेंटेशन अनीता जी की तरफ।